Hello students, we have already studied about tense. We took so much time to study this to understand it properly. Today I shall tell you tense at a glance. You know that tense means full of tension. But in grammar, tense is the form of a verb which shows the time of an action and shows its degree of completeness. And tenses are of three types: present tense, past tense and future tense, and each tense has been divided into four parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous tense. Today we shall study about the uses. We have already studied, but tense at a glance I am going to tell you about the uses of all tense in this single video. It is quite unique, so you must watch this video again and again for your better understanding. So present indefinite or simple present uses to express regular or habitual action. रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है. एंड वी नो दैट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज एडवर्ब्स ऑफ टाइम लाइक डेली, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर. एवरी लगा हुआ कोई भी वर्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ऑफन, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, जनरली, usually, occasionally, commonly, hardly, rarely, scarcely, habitually, once a week, twice a week, etc. अगर सेंटेंस में इस तरह सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है तो वी शैल यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट और सिंपल प्रेजेंट. वी कैन आल्सो यूज पास्ट इंडेफिनाइट. ओके, नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. To express universal truth, it may be mathematical truth, scientific truth or proverbs, etc. For example, water boils at 100 degrees Celsius. The sun rises in the east. Okay. Next, number 3, to express possession. Possession को express करने के लिए भी simple present या present indefinite tense का प्रयोग किया जाता है. For example, he owns a big building. That pen belongs to hers. That pen belongs to hers. Okay. Like this, number 4, to express mental activity or emotions and feelings. Example, she trusts in him. We believe in God. Okay. In these types of sentences, we use the verb notice, see, hear, feel, smell, appear, look, seem, want, wish. Okay. Understand, desire, suppose, agree, believe, hope, refuse, know, remember, forget, imagine, mean, mind, hate, love, like, etc. All these verbs are used in a simple present. These verbs are not used in present continuous tense, as I have already told you. Okay. These verbs can be used in present continuous tense in some rare cases. Okay. Next, I shall tell you to express planned or fixed program in future. Example, she leaves for Newark next Monday. Next, number 6, to describe quotation. Quotation को describe करने के लिए भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ. ओके. नेक्स्ट, नंबर 7. नंबर 7. ओके, टू एक्सप्रेस लाइव टेलीकास्ट. लाइव टेलीकास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं. लाइव टेलीकास्ट जैसे किसी क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच आदि, और प्लेस, कोई नाटक, फिल्म, सीरियल, इस तरह जब लाइव टेलीकास्ट होता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसे एग्जांपल, गांगुली runs after the ball, catches it and throws it on the stumps and it is out. Okay. Next, to express exclamatory sentences starting with here or there. Here or there से start होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, हियर कम्स द ट्रेन.
देयर गोes नवदीप एटसेट्रा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले अलग प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंसेस। टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंसेस वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। जैसे अगर सेंटेंस के बीच में इफ, व्हेन, अनलेस, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर इस तरह का प्रयोग किया गया है और प्रिंसिपल क्लॉज में शाल, विल, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज सबऑर्डिनेट कंजक्शंस विल बी यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। These subordinate clauses may be used at the starting of the sentence. We can write if plus subordinate clause यानी कि present indefinite tense then principal clause। इस स्ट्रक्चर में भी हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, you will pass if you work hard। यहाँ if सेंटेंस के बीच में है। अगर हम इसको सेंटेंस के शुरुआत में रखेंगे तो स्टार्टिंग ऑफ दिस सेंटेंस अगर हम रखेंगे तो हम लिखेंगे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ओके, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज अगर शाल, विल, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में लिखना है। नेक्स्ट वी शैल रीड प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। नंबर 1, टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय पर जो एक्शन हो रहा है उसको लिखने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज राइटिंग एन ऐसे, वो एक ऐसे लिख रहा है। भाई जिस टाइम लिख रहा है उसी टाइम जब हम ये बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करता है। इसमें क्या क्लू रहता है? इसमें स्टिल, लुक, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, हरी अप, रन फास्ट, डोंट डिस्टर्ब, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस तरह सारे क्लू रहता है तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग और कहाँ क्या आता है ना, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम और फिक्स्ड प्लान इन फ्यूचर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा था इस तरह, शी इज लिविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। वह कल न्यूयॉर्क के लिए जा रहा है या न्यूयॉर्क जाएगा। इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का भी प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस इंटेंशन और लाइक्लीहुड। इंटेंशन या लाइक्लीहुड को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ से मिलने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और कहाँ यूज किया जाता है? इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में एज का प्रयोग किया गया है और उससे पहले के में कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, देन उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। जैसे वी कैन नॉट गो आउट एज इट इज रेनिंग, जैसे बारिश हो रहा है तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो these were about present continuous tense. Next, present perfect tense. Present perfect tense to express the recently completed action. Recently, हाल ही में जो एक्शन सारे कंप्लीट हुआ है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव जस्ट बॉट ए फैन, मैंने ठीक अभी अभी एक फैन खरीदा हूँ। तो इस तरह क्लू वाले वर्ड क्या होता है? इसमें एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली और ऑफन, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, येट। अगर येट आए तो नेगेटिव में होता है, अप टू नाउ, सिंस या फॉर एटसेट्रा। इस तरह अगर है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन इन व्हिच नो पर्टिकुलर टाइम इज गिवन। ऐसे पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर टाइम ना दिया गया हो। ठीक है क्या? जैसे शी हैज गॉन टू अमेरिका, ऐसे कोई एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है।
अगर सेंटेंस के बीच में सिंस का प्रयोग कर रखा है, सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट का प्रयोग किया जाता है और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है क्या? सेंटेंस के बीच में अगर सिंस है, सिंस के तुरंत बाद यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट लास्ट। मैंने उनसे नहीं मिला हूँ जब से हम पिछले बार मिले थे। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंक्लूडिंग पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम जानते हैं अगर सिंस या फॉर के साथ टाइम आया, सिंस या फॉर के साथ टाइम आया तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इस तरह फ्रॉम या फॉर, फ्रॉम या सिंस या फॉर प्लस टाइम आया तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। मैंने आपको फ्रॉम के साथ बताया था, सिंस के बदले में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन स्टडीइंग देयर फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। शी विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम मंडे एटसेट्रा। इस तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट वी शैल स्टडी अबाउट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले बोला है कि टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वह कल मुंबई गया था। यस में क्या है? यस्टरडे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अगर एडवर्ब्स ऑफ टाइम यस्टरडे, यस्टरडे लगा हुआ कोई भी वर्ड, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग इस तरह आया, या लास्ट फ्राइडे या लास्ट लगा हुआ कोई भी वर्ड आया, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, या एगो आया, या कोई पर्टिकुलर डेट आया, पर्टिकुलर डेट जैसे 1947, 2006, ऑन 15 अगस्त 1947 इस तरह आया तो हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन। कोई पास्ट में, अतीत में कोई रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। जैसे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि भाई गांधी जी ऑलवेज, ALWAYS, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, स्पोक द ट्रूथ ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ओके, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। नेक्स्ट, और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का लगता है जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इस तरह अगर प्रयोग किया गया है तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करता है। टू एक्सप्रेस सपोजिशनल सेंटेंस जैसे इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, इस तरह अगर प्रयोग किया गया है तो हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ही टॉक्स, जैसे एग्जांपल ही टॉक्स एज इफ ही वर माय सिस्टर। इसमें मतलब विश करने के लिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया गया और इसमें बी वर्ब अगर प्रयोग किया गया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, अगर बी वर्ब का प्रयोग किया गया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगर एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस मंथ इस तरह का प्रयोग किया गया है तो भी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सॉ मी दिस वीक, इस तरह के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ही हैज सीन मी दिस वीक। प्रेजेंट परफेक्ट भी भर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनाइट भी भर सकते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस इफ कंडीशनल क्लॉज, इफ कंडीशनल क्लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। किस तरह मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर सेंटेंस में इफ है और प्रिंसिपल क्लॉज शाल, विल, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो बाद में प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भरते हैं। जैसे ही विल गो देयर इफ यू इनवाइट हिम। अब कह रहा है कि अगर सेंटेंस के बीच में इफ का प्रयोग किया गया है, इफ से पहले प्रिंसिपल क्लॉज में शुड, वुड, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
तो और सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इधर शैल का पास्ट टेंस शुड, विल का पास्ट टेंस वुड, कैन का पास्ट टेंस कुड हो गया। ये मोडल के साथ हमेशा भर की पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है क्या? तो इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल इसका, ही वुड गो देयर इफ यू इनवाइट हिम, वह वहां जाएगा अगर आप उसे इनवाइट करोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर सेंटेंस के बीच में इफ का प्रयोग किया गया है और प्रिंसिपल क्लॉज में शुड वुड कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रखा है, शुड वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रखा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो गया, तो इधर भी परफेक्ट टेंस हो गया। इन अ वे ये परफेक्ट टेंस हो गया, इसलिए इधर पास्ट परफेक्ट भरा। और सेकंड में क्या था, इन अ वे ये पास्ट हो गया, इसलिए पास्ट इंडेफिनाइट था, ठीक है क्या? जैसे इसका एक एग्जांपल, ही वुड हैव गॉन देयर इफ यू हैड इनवाइटेड हिम, ये वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, इसलिए इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया। ओके, तो जैसे मैंने कहा, मैं कह रहा हूं जैसे सेंटेंस के बीच में, इसको सेंटेंस के शुरुआत में भी लगा सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस अगर यूज करेंगे तो ये सारे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आएगा और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट और पास्ट टेंस, माने कि ये पास्ट टेंस में सारे रूल मिला के आपको बता रहा हूं, ठीक है क्या? ओके, इज इट क्लियर? पास्ट परफेक्ट मतलब ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस के बीच में बिफोर का प्रयोग कर रखा है, सेंटेंस के बीच में बिफोर का प्रयोग है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, इस तरह बिफोर का अपोजिट आफ्टर हुए, बिफोर का अपोजिट आफ्टर, इसलिए उसका रूल भी अपोजिट हो गया, यानी कि बिफोर से पहले यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट इंडेफिनाइट और सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट परफेक्ट। एग्जांपल, ही वेंट देयर आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई व्हेन से पहले अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है, व्हेन से पहले अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है तो व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वाज रीडिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन से पहले पास्ट इंडेफिनाइट, व्हेन के बाद भी पास्ट इंडेफिनाइट। एग्जांपल, शी डांस्ड व्हेन ही sang a song, व्हेन से पहले पास्ट परफेक्ट, व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनाइट। जैसे द क्रॉप्स हैड डाइड व्हेन इट रेन्ड, क्रॉप्स मर चुका था या सूख चुका था जब ये बारिश हुआ। आप देख सकते हैं ये जो व्हेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, यानी कि व्हेन के तुरंत बाद, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और प्रिंसिपल क्लॉज कभी पास्ट इंडेफिनाइट, कभी पास्ट कंटीन्यूअस, कभी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये इसके हिंदी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो व्हेन वाले में ये थर्ड सेंटेंस और आफ्टर और ये बिफोर वाला जो सेंटेंस है, इसमें 2 एक्शंस होता है साइमल्टेनियसली। फर्स्ट एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और जो दूसरा एक्शन होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, जो पहला एक्शन होता है उसको प्रीवियस एक्शन बोलते हैं, और बाद में जो एक्शन होता है सब्सिक्वेंट एक्शन बोलते हैं। सो प्रीवियस एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट और सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर सेंटेंस में व्हाइल का प्रयोग कर रखा है, व्हाइल से पहले पास्ट कंटीन्यूअस है तो व्हाइल के बाद भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह एज में भी रूल है, सही है, एज से पहले अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो एज के बाद भी पास्ट कंटीन्यूअस, सॉरी एज से पहले अगर कुड या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कुड या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो एज के बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं दोबारा इसको बोल रहा हूँ, एज से पहले अगर कुड या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एज के बाद यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी कुड नॉट गो आउट एज इट वाज रेनिंग आउटसाइड,
नेक्स्ट, व्हाइल से पहले पास्ट इंडेफिनाइट, व्हाइल के बाद भी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का भरा जाता है या यूज किया जाता है। तो ही डांस्ड व्हाइल शी sang। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस के बीच में एजिफ है, सेंटेंस के बीच में अगर एजिफ है, सेंटेंस के बीच में अगर एजिफ है, एजिफ से पहले अगर पास्ट इंडेफिनाइट है तो एजिफ के बाद हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एजिफ से पहले अगर पास्ट इंडेफिनाइट है तो एजिफ के बाद क्या प्रयोग करते हैं, जैसे ही सी ईट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोर का प्रयोग करता है अगर बी भार है तो, पहले मैं बता रखा हूं। ही स्पोक एज इफ ही हैड सीन ए घोस्ट। ओके, नेक्स्ट, आप ऐसे कह सकते हैं जो सारे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच, नेक्स्ट पेज में बताऊंगा आपको, पहले फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर देखने के बाद मैं वो पास्ट बड़ा थोड़ा सा और बता दूंगा आपको। फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, अगर शाल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है अगर सेंटेंस में टुमारो आया, नेक्स्ट डे आया, ठीक है क्या। इस तरह बाय नेक्स्ट मंथ, बिफोर मंडे, बाय प्लस टाइम है तो या तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे या फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी भर सकते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप कहाँ भरते हैं, जैसे सेंटेंस के बीच में बिफोर है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, सेंटेंस के बीच में अगर बिफोर है और सेंटेंस बिफोर से पहले यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। जैसे ही विल हैव रीच्ड देयर बिफोर हिज फादर कम्स, ठीक है क्या। बिफोर वाले रूल थोड़ा ध्यान देना। बिफोर का जो पहला रूल आपको मैंने बताया था, ये बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनाइट, लेकिन इधर मैं आपको बता रहा हूं बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ओके, नेक्स्ट आई एम टेलिंग अबाउट पास्ट मीन सेड, सेड टू, आस्क्ड, इस तरह में है। देन इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, वो टेंस के अनुसार वो चेंज होता है। डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो सारे टेंस के अनुसार बदल जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, साल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, इस तरह में हम बदल देते हैं, ठीक है क्या। जैसे एग्जाम्पल, ही सेड आई नो इंग्लिश, ही सेड आई नो इंग्लिश, ये डायरेक्ट स्पीच में है और इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है या इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो पास्ट में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। ही सेड दैट ही न्यू इंग्लिश। तरह शी सेड हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, शी सेड हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, शी आस्क्ड इफ आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। तो आप देख सकते हैं भाई, व्हाट इज माय पॉइंट, माय पॉइंट इज दैट इफ इन द सेंटेंस देयर इज दैट और इफ, अगर सेंटेंस में दैट है या इफ का प्रयोग किया गया है, इफ या WH वर्ड का प्रयोग किया गया है, इफ या WH वर्ड का प्रयोग किया गया है और उससे पहले पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हम या तो पास्ट परफेक्ट भरेंगे या पास्ट इंडेफिनाइट भरेंगे या पास्ट कंटिन्यूअस भरेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरेंगे। ये हमारा डिपेंड करता है कि भाई डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस प्रकार की सेंटेंस है, उसी के अनुसार हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है क्या। इन द लास्ट पेज व्हाइल teaching about the rule of after, I just did a mistake. Instead of saying after, I told before. You will do it correction please. Sorry for this. अगर after से पहले past indefinite tense है तो after के बाद had plus verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। This lecture is very unique. I hope you will watch again and again. And this is not your
homework. This work will not be written in fair notebook. Whatever homework will be given, you will write in fair notebook. For today, this much only. Thank you.